بسم اللہ الرحمن الرحیم رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرا۔ دیکھیے آج کا سبق جو ہے درس اللغۃ العربیہ پڑھ رہے ہیں ہم، تو اس میں ہم جو پڑھ رہے ہیں الدرس الثانی۔ الدرس ثانی، درس کے معنی کیا ہے؟ درس مطلب سبق، لیسن، ٹھیک ہے، لیسن یا سبق ہے نا، سبق۔ ثانی کہتے ہیں دوسرے کو، دوسرا، سیکنڈ لیسن، دوسرا سبق آج ہم پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کے سامنے دیا ہوا ہے دوسرا سبق ہے نا، دو بنا ہوا ہے۔ تو ہم جو پڑھ رہے ہیں تو اس میں یاد رکھیے کہ ہم نے جو پڑھے پیچھے الفاظ، ہم جملہ بھی پڑھ چکے ہیں، جملہ کس سے کہتے ہیں، اور قریب کے اشارے کے لیے جو چیز استعمال ہوتی ہے، جو استعمال ہم لفظ کرتے ہیں وہ ہاذا، جیسے یہ میرے پاس پین ہے نا، یہ پین ہے تو اس کو ہم ہاذا کہیں گے، ٹھیک ہے، مذکر کے لیے ہاذا، اور مؤنث کے لیے جو ہے اسی کے لیے ہاذی پھر استعمال ہم کرتے ہیں، ہاذی۔ تو یعنی ہاذا نزدیک کے لیے، اور ہاذی جو ہوگا یعنی نزدیک مذکر کے لیے، اور ہاذی جب کوئی یعنی مؤنث والی چیز ہوگی یا مؤنث ہوگی تو ہاذی، ٹھیک ہے، یا مؤنث اسم ہوگا۔ تو اب جیسے دور کا اشارہ یعنی دور ہے تو اس کو کہیں گے ہم ذالکا، کیا کہیں گے؟ تو دور والے، ہاں دور والے اشارے کے لیے ہم جو کرتے ہیں استعمال، وہ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں وہ ذالکا کا لفظ کر رہے ہیں استعمال، ٹھیک ہے، ذالکا کا لفظ استعمال کر، ذالکا مطلب وہ والی چیز، وہ یعنی دور والی چیز، اس کے لیے ہم ذالکا، جیسے ہاذا قلم، اگر دروازہ ہے دور تو ذالکا باب، وہ دروازہ ہے، تو اس لیے دور کے اشارے کے لیے ہم ذالکا کا لفظ استعمال کر رہے ہیں۔ چھوٹا سا لیسن ہے آج، تو جیسے ہمارے پاس ہے اسم کو پوچھنے کے لیے بات آ گئی تھی پیچھے کہ ماں اور ذالکا دور کے لیے، کیونکہ ستارہ جو سب سے پہلے آپ کے سامنے پکچر دی ہوئی، تو ماں ذالکا یہ کیا ہے؟ ماں مطلب کیا، ذالکا یہ کیا ہے، ماں ذالکا یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، ہاں وہ کیا ہے، ماشاءاللہ، ذالکا کیا ہے؟ نجم، یہ ایک ستارہ ہے، ماشاءاللہ یہ ایک ستارہ ہے، ہاں وہ ایک ستارہ ہے دور کے لیے۔ ذالکا مطلب وہ، اور نجمن ستارہ، نجمن ستارہ، یہ بھی جو ہے اس میں ہم دیکھیں گے ذالکا کا جو لفظ ہے ذالکا، یہ بھی مبنی حروف میں آتا ہے، یعنی وہ الفاظ جو اپنی جگہ سے ہلتے نہیں، ٹھیک ہے، ان کو مبنی کہا جاتا ہے، مبنی۔ تو جیسے ذالکا ذالکا ذالکا، مبنی سے مراد وہ جو اپنی جگہ تینوں حالتوں میں سیم رہتا ہے، ایک جیسا رہتا ہے۔ تینوں حالتوں سے مراد کیا ہوگی؟ رفع، نصب، جر، رفع یا نصب اور جر، تینوں حالتوں میں ایک جیسا رہے گا، اس کو مبنی کہا جاتا ہے۔ رفع نصب جر میں تینوں حالتوں میں ایک ہی جیسا ہے۔ تو ما ذالکا خبر مقدم بالکل، اور ذالکا مبتدا مؤخر یعنی بعد میں آئے، تو وہ کیا ہے؟ تو ذالکا نجمن، تو دونوں مل کر جملہ اسمیہ ہو گئے۔ ذالکا مطلب وہ نجمن ستارہ، اور ذالکا مبتدا، اور نجمن کیا ہوگا اس میں؟ خبر، ٹھیک ہے، ماں گئے اس کی جگہ، نجمن کی جگہ، اور ذالکا وہ ستارہ ہے۔ اب اسی طرح دیکھیے قریب ہے، اب دونوں، ایک قریب مسجد ہے اور گھر ذرا اس سے دور ہے، تو کیا استعمال ہوا ہے؟
हाजा हाजा जी, वज़ालिका हाजा आदि मस्जिद, का भाई हाजा मस्जिदुन, ये मस्जिद है। व ये मस्जिद के माना और, जालिका और बैतुन, और हाजा वो मस्जिदुन ये मस्जिद है, व घर जालिका बैतुन और वो एक घर है। और वो एक घर है। माशाल्लाह, तो घर कहाँ है, यहाँ दूर है और मस्जिद को करीब रखा गया है। ठीक है, दोनों इसमें इशारा है, इनको इस्तेमाल किया गया है। नेक्स्ट ये जुमला है, हाजा हिसानुन वजालिका हिमारुन। कोई तर्जुमा कीजिए। ये घोड़ा है, वो गधा है। ये एक घोड़ा है, वो एक गधा है। माशाल्लाह, हाँ एक गधा है। माशाल्लाह। अजालिका कल्बुन, ये तस्वीर यहाँ पे दी है, पिक्चर, ये क्या एक कल्बुन है? कुत्ता है। अल्लाह ज़ालिका क्या ये कुत्ता है? क्या वो कुत्ता है? सॉरी, नहीं अजालिका कल्बुन, क्या वो कुत्ता है? नहीं, वो एक माना ज़ालिका जवाब, कितन, वो एक जालिका हित्तुन। कित्तुन। हाँ वो वो एक नहीं, वो एक क्या हुआ? बिल्ली। हित्तुन पढ़ा हमने पीछे? बिल्ला या बिल्ली है। माशाल्लाह, हाँ नहीं वो एक बिल्ली है। बिल्ला है। माशाल्लाह। मा जालिका, इसको क्या कहें? मा जालिका, वो क्या है? वो क्या है? जालिका शरीरुन, ये एक वो चारपाई क्या है। है? जालिका सरीरुन, वो चारपाई है। जालिका सरीरुन, वो चारपाई है। माशाल्लाह। तो तरकीब इसमें आएगी, आपको करनी, कैसे करनी है? आसान है। अब इस वाले तो जालिका सरीरुन वाले को कर लीजिए, कोई तरकीब बना लीजिए इसको तरकीब के साथ, जल्दी जल्दी। ज़ालिका मुब्तदा, तरकीब शरीरुन मतलब, खबर। हाँ जज़ाकिल्लाह, माशाल्लाह। जालिका मुब्तदा और सरीरुन खबर, खबर मुब्तदा और खबर मिलकर जुमला। इसमिया। तो ऊपर वाला कोई बता सकता है? ऊपर वाला कोई और बताए। ऊपर में जो माँ है वो मुकद्दम है, खबर ज़ालिका है मुब्तदा, मुअक्खर। मुअख्खर, माशाल्लाह। मा जालिक, मा जो है मुकद्दम है, मुकद्दम खबर है, तो और खबर मुकद्दम, खबर और है, जालिका मुब्तदा ये खबर है, मुअख्खर। माशाल्लाह, मुकद्दम है, खबर बिल्कुल है। बिल्कुल और बिल्कुल, माशाल्लाह। ज़ालिका दोनों मिलकर जुमला मुब्तदा इस्मिया, मुअक्खर। जो दोनों मिलकर जुमला इस्मिया कहलाए। जज़ाकुमुल्लाह खैरन, माशाल्लाह। चलिए अब यहाँ पे नेक्स्ट है, नेक्स्ट हमारे पास मन हाजा वमन जालिका। देखिए मन हाजा ये और वमन जालिका। अब यहाँ पे और वो कौन हाजा हाजा मुदर्रिसुन ज़ालिका मुदर्रिसुन, एक आदमी जो बोर्ड पर लिख रहा है, बोर्ड पर लिख रहा है, तो अन हाजा हाँ एक बोर्ड पे लिख रहा है। तो वज़ालिका इमामुन, और एक कहाँ क्या कर रहा है? इमाम है, नमाज इमामत कर रहा है। तो क्या आएगा इसका माना? मन हाजा वमन जालिका, ये कौन है और वो कौन है? ये कौन है और वो कौन है? वो कौन है? हाजा हाजा मुदर्रिसुन, उस्ताद है और वो इमाम। जज़ाकिल्लाह, और वो इमाम है। माशाल्लाह, ये उस्ताद है और वो इमाम है। माशाल्लाह, जज़ाकिल्लाह खैर। माशाल्लाह। अब इसके लिए नीचे वाला मा जालिका, वो क्या है? क्या है? जालिका ज़ालिका हजरुन, हजरुन, एक पत्थर है। जालिका हजरुन, तो एक हजरुन को पत्थर हजरुन। कहेंगे अरबी में। अरबी को पत्थर यानी पत्थर अरबी में हजरुन कहते हैं, जैसे हुजरे अस्वद, उस तरह से आपको ज्यादा आसान लगेगा, याद रखना। ठीक है। या हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भी आसाकल हजर, यानी अपने आसे से पत्थर पर मारो, और क्या हो गया फिर यानी हुस्नता आईना अशरा, फिर वहां से क्या हो गया? 12 चश्मे फूट पड़े। बिल्कुल, माशाल्लाह। तो इस तरह से भी आप इस लिंक को याद रख सकते हैं, इस लफ्ज के माना को। चलिए, सुक्करुन, ठीक है। हाजा सुक्करुन, नजदीक है, थाली में नजदीक है, प्लेट में। हाजा सुक्करुन वजालिका, और यहाँ गिलास में दूध। दूध को अरबी में लबनुन कहेंगे। क्या कहेंगे? लबन।
दही को कहते हैं। जी, क्या होगा इसका माना? یہ ये شکر ہے اور وہ دودھ ہے، दूध है, हाँ دہی ہے۔ चलिए, दही है। हाजा सुक्करुन, ये खांड है या ये चीनी है, ये शक्कर है। तो वजालिका लबनुन, और वो दूध है। दूध है। دہی हाँ, दूध दूध या ہے۔ दूध ही कहें। देखिए एक चीज है और है, यहाँ पे नया लफ्ज आया दो जुमलों को दो जोड़ने के लिए, ठीक है, इसको हरफे अत्फ कहते हैं, ठीक है, अत्फ, वाव और अलिफ, ये सॉरी वाव और आउ, ये दो लफ्ज हैं, इनको हरफे अत्फ कहा जाता है, ठीक है। ये दो जुमलों को जो आपस में जोड़े, मातूफ अलैह होता है तो और एक मातूफ होता है, अत्फ होता है, ठीक है। मातूफ अलैह पिछला वाला और ये अत्फ अगला वाला, ठीक है। तो ये दोनों जुमले को आपस में जोड़ लेता है, हाजा सुक्करुन वजालिका लबन, ठीक है। नेक्स्ट, तो तमरीन हम इसमें देखें, तो चलिए जरा, इक़रा वक्तुब, इक़रा क्या माना आया इसका, पढ़ो और लिखो। कोई बताए, पीछे हम पढ़ चुके हैं। पढ़ो پڑھو اور لکھو۔ اقرأ وکتب، वक्तुब, اکتب، आगे आ जाएगा, हमें सब धीरे धीरे झुई आगे हम तो पढ़ेंगे लिखो। सारी चीजें। इकरा का जो लफ्ज है ना, एक अम्र का लफ्ज है, माशाल्लाह, जो हम पढ़ चुके हैं पीछे, ठीक है। इकरा, इकरा भी अम्र है और वक्तुब भी अम्र है। और इकरा किस लफ्ज से बना है, क़राअत से, यानी दो तीन लफ्ज है हमारे पास से जो स्ट्रांग वर्ब के हैं, जो हमने फेले माजी में पढ़े, जैसे क़राअ है ना, क़राअ उसने पढ़ा, और यक़रअु पढ़, और ये असल में हाजिर मुतकल्लिम मुखातिब से बनता है, जैसे इक़रा यक़रअु, यक़रअून, तक़रअु, तक़रअु से बना है ये लफ्ज, तक़रअु, तक़रअु यहाँ पे मुज़ारे आ गया। और इसी को अगर हमने फेले अम्र बनाना है तो क्या करते हैं, इसी को बनाते हैं, तो ता भी हट जाएगा और आखिरी हर्फ को साकिन कर देंगे, तो क्या बनेगा, क़रा। پہلے यानी میں अब क्योंकि حمزہ لگے گا، اقرأ۔ पहला हर्फ जो है साकिन से शुरू हो रहा है, जैसे यहाँ पे है साकिन से शुरू हो रहा है, इसलिए ये नहीं पढ़ा जाएगा, तो इसको हमजतुल वस्ल लगाना पड़ेगा, हमजा शुरू में लगाकर फिर ये बन जाता है इक़रा, है ना। हमारे पास क्या है, ये इक़रा, तो ये फेले अम्र है, ठीक है, ये फेले अम्र है। और वक्तुब भी है, असल में ये उक्तुब है, इक़रा उक्तुब, है ना। اکتب، और जो इक़रा का लफ्ज बना है, ये बना है इससे یکتب، یکتب سے، फा से, यानी फा से। फा के माना क्या होगा, यहाँ देखिए फतहा यफ्तहू से बना हुआ, ठीक है, फतहा के इसके बाब से बना हुआ है। और इक़रा वक्तुब, वक्त कतबा या नसरा के पैटर्न पे, नसरा के पैटर्न पे, ठीक है। वक्तुब मतलब लिख, ठीक है। वक्तुब असल में उक्तुब है, कतबा उसने लिखा, यक्तुबु वो लिखता है, और अम्र के लिए हम करते हैं उक्तुब लिख, ठीक है, उक्तुब लिख। आप ये पढ़ रहे हैं, हम अंडरस्टैंडिंग एंड कुरान एंड सलाह वाला हम पढ़ रहे हैं साथ साथ में, उसमें ये सारी चीजें आ रही हैं, फेले अम्र, फेले माजी और फेले मुजारे और फेले अम्र, ये सारे हमारे सामने आ चुके हैं, तो इसलिए मैं इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, हम लोग सब नहीं जाएंगे। तो इसमें है, चलिए जरा बताइए इसको तर्जुमा करके, और इसको पढ़िए जरा जी, दो चार जुमले। हाजा सुक्करुन वजालिका लबन, क्या माना होगा, یہ شکر ہے اور وہ دہی ہے، दूध है, माशाल्लाह। मन जालिका, जालिका इमामुन, मन जालिका, मन कौन है जालिका, वो कौन है, जालिका इमामुन, वो इमाम है। अजालिका क़ित्तुन, क्या वो बिल्ला है, ला نہیں، لا ذالکا، لا ذالکا کتب، जालिका
नहीं, ये क्या है ये वाला, ये पढ़िए जरा, इसको खुद ही अब एराब लगाइए, हरकत लगाइए, पता चलेगा। कालबुन कालबुन कल्बुन, इंशाल्लाह। नहीं, वो एक कुत्ता है, कुत्ता है। वो एक कुत्ता है। अच्छा, मा हाजा, ये क्या है? हाजा हाजा हजर हजरुन हजरुन, हजरुन क्या है ये क्या है? पत्थर। हाजा हजर जज़ाकिल्लाह। ये पत्थर है, ये पत्थर है, माशाल्लाह। अल कलिमातु जदीदतु, देखिए अल कलिमातु जदीदतु क्या माना होगा इसमें? कलिमात कहते हैं हम बात को या अल्फाज को, ठीक है। कलिमातु जदीदतु, जदीदतु क्या माना है? नया। जदीदतुन, ये जदीदतु नया, न्यू वर्ड्स हैं, तो न्यू वर्ड्स है इसमें। अगर इन दोनों की तरकीब करनी है, एक नई चीज हमारे सामने और आ गई, ठीक है। कलिमात जो है मौसूफ है और जदीदतु सिफत है, सिफत और मौसूफ यानी नए कलिमात, नए अल्फाज, ठीक है। अब इनका तर्जुमा उल्टा होगा, उल्टा होगा, ठीक है। तो उल्टा तर्जुमा इनका होता है। अब इसमें जैसे कहा गया है, बात एक आती है, इसमें मौसूफ सिफत में क्या होता है? दोनों चीजें मरफूआनी, दोनों मुब्तदा और खबर जो होगा दोनों रफा वाली हालत में होंगे, यानी दोनों पेश वाली हालत में होंगे। तो ये कौन सा है? ये मौसूफ और सिफत दोनों एक ही हालत में होंगे, मौसूफ और सिफत दोनों एक ही हालत में होंगे। इसलिए अल कलिमातु जो है मौसूफ है और जदीदतु सिफत है, ठीक है। और इनका जो है उल्टा तर्जुमा होता है नए कलिमात, इनका उल्टा तर्जुमा होगा। जैसे नए इधर लेंगे हम, कलिमात आगे, नए वर्ड्स या न्यू वर्ड्स, नए अल्फाज। इमामुन हमने पढ़ा, हजरुन हमने पढ़ा, सुक्तरुन पढ़ा हमने, लबनुन पढ़ा। इमामुन इमाम, हजरुन पत्थर, सुक्तरुन ये चीनी। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सबको सही तरीके से पढ़ने, समझने, अमल करने, गौर करने और इसकी यानी फैलाने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैका। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।